noun can further be described as number, because nouns are countable and uncountable, and the nouns that are countable can further be divided into two, singular and plural. If anything is one, then it is singular. If it is more than one, then it is plural. So the countable nouns can be divided into singular and plural, but be aware, keep in mind that uncountable nouns cannot be singular or plural. It means their number cannot be changed. Further classification is of noun is gender. Gender means ling. If the person, if the thing is male, female or whatsoever, that is gender. Gender is also a classification of noun. So this noun that are gender are further divided into four parts: masculine, feminine, common and neuter gender. Masculine gender is the males, as look here, a noun that denotes a male is said to be a muscular gender or muscular noun. Nouns like boy, man, brother, father, king, nephew, dog, etc. are all muscular genders or muscular nouns. Then feminine gender or feminine nouns. A noun that denotes a female is said to be the feminine gender. These are feminine nouns. Nouns like girl, woman, sister, mother, queen, niece, bitch, etc. are feminine gender or feminine nouns. Next is common gender. A noun that can denote both a male and a female. It means a noun that can be male as well as female. You say my friend, friend can be male, friend can be female. You say my teacher, teacher can be male, teacher can be female. So a noun that can denote both a male and a female is said to be common gender. Nouns like baby, child, parent, teacher, pupil, student, person, doctor, player, all these are common gender. Next is neuter gender. Neuter means that are non-living. A noun that denotes a non-living thing is said to be a neuter gender, because a non-living thing cannot be a male, cannot be a female. जो ना मेल हो सकता है ना फीमेल हो सकता है, जो नॉन लिविंग है, दैट इज न्यूटर जेंडर. द वर्ड्स न्यूटर मीन्स नाइदर, दैट इज नाइदर मेल और नॉर फीमेल. नाउन्स लाइक बुक, पेन, चेयर, कार, गोल्ड, स्कूल आर न्यूटर जेंडर्स. क्लियर? द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नाउन इज नाउन केस. You know what is noun? Noun is the name of a person, place or a thing. Case means place. The place of noun in a sentence is said to be the case. यानी एक सेंटेंस में नाउन कहाँ पर आएगा, कौन सी उसकी जगह होगी, उसे हम केस कहते हैं. The relation in which a noun or pronoun stands to other words is called a case. यानी एक सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे वर्ड से क्या संबंध रखता है, कहाँ पर है वो उसका केस होता है. लुक हियर, निकिता हैज़ रिटन एन एसे. हियर निकिता इज द नाउन. निकिता इज द नाउन. ईशांत लर्नड हिज लेसन. हियर लेसन इज द नाउन. लुक हियर, हियर नाउन इज इन द बिगिनिंग, हियर नाउन इज इन द लास्ट. द टीचर टॉट शिवम मैथमेटिक्स. हियर टीचर इज ऑल्सो नाउन एंड शिवम इज ऑल्सो नाउन and mathematics is also noun. Here it is in the beginning as well as in the last. So these are the cases. I tell you the cases. First is nominative case. Nominative क्या होता है? When a noun is used as the subject of a verb. यानी जब noun sentence में verb से पहले आता है, that is called the nominative case. Neetu ate ice cream. Neetu is noun, ate is verb. सो वर्ब से पहले जो नाउन आ गया, दैट इज़ नोमिनेटिव केस. द क्वेश्चन इज़ रॉन्ग. इज़ क्या है यहाँ पे? वर्ब. और क्वेश्चन क्या है? नाउन. तो जो क्वेश्चन ना वर्ब से पहले आ गया, जो नाउन वर्ब से पहले आ गया, दैट इज़ नोमिनेटिव केस. क्लियर? नेक्स्ट इज गो देयर अंकित. यहाँ पे अंकित क्या है? अंकित इज़ द नेम, दिस इज़ द नाउन. तो
जब गो देयर अंकित, यानी किसको कहा जा रहा है गो देयर? अंकित को कहा जा रहा है। बॉयज़ अटेंड टू मी किसको कहा जा रहा है? बॉयज़ को। जब इस तरह से हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को नाम लेकर बुलाते हैं, उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। दिस इज़ वोकेटिव केस, यानी वोकल बोलना, जिसको हम बुलाएं वो वोकेटिव केस हो जाता है, ठीक है। और इसको हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं, क्योंकि हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, बुला रहे हैं, इसलिए इसको हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस केस कहते हैं, या फिर हम इसको वोकेटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या होता है? एक्यूसेटिव केस। एक्यूसेटिव केस। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? सेंटेंस में लास्ट में होता है। जिस तरह से अगर बिगिनिंग में सब्जेक्ट है, बिगिनिंग में नाउन है, तो वो सब्जेक्टिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। इसी तरह से अगर लास्ट में है नाउन तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसको हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं। नीलू एट आइसक्रीम, यहाँ पे आइसक्रीम कहाँ है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। जब नाउन जो है वो वर्ब के बाद आए उसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं। फादर प्रेज्ड करण, करण क्या है? नाउन, और प्रेज्ड क्या है? वर्ब। तो वर्ब के बाद आ रहा है तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। तो यहाँ पे हम नाउन की पोजीशंस पढ़ रहे हैं, तो नाउन ऑब्जेक्ट तो हो गया, ये तो ठीक है। जैसे नीतू एट आइसक्रीम, ये आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। द टीचर टॉट रमन हिस्ट्री, द टीचर टॉट रमन, रमन भी ऑब्जेक्ट है और हिस्ट्री भी ऑब्जेक्ट है। अ काइंड लेडी गेव द चाइल्ड फूड, अब इसमें चाइल्ड भी ऑब्जेक्ट है और फूड भी ऑब्जेक्ट है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों में एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको याद क्या रखना है? जो थिंग्स के नेम्स हैं, जो थिंग्स के नेम्स हैं, चीज़ों के नाम हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जो पर्सन्स के नाम हैं, जो व्यक्तियों के नाम हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। द टीचर टॉट रमन हिस्ट्री, अब यहाँ पर थिंग का नाम क्या है? हिस्ट्री, इट मीन्स दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और द टीचर टॉट रमन हिस्ट्री, रमन क्या है? पर्सन का नाम है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ काइंड लेडी गेव द चाइल्ड फूड, यहाँ पर चाइल्ड क्या है? पर्सन का नाम है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फूड क्या है? थिंग का नाम है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज पोजेसिव केस। पोजेसिव क्या होता है? पोजेशन, हमारी कोई चीज़ है, हम किसी चीज़ के मालिक हैं, दैट इज़ द पोजेशन। तो पोजेसिव केस जब हम लिखते हैं, जैसे मीराज बैग इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे ये जो मीराज बैग है ये पोजेसिव केस है, यानी मीरा का थैला। आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम बैग ऑफ मीरा भी कह सकते थे, लेकिन व्हेन अ नाउन शोज पोजेशन इट इज़ सेड टू बी द पोजेसिव केस। पोजेसिव केस कैसे बना? क्योंकि इसने पोजेशन दिखाई, और पोजेशन दिखाने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया? अपोस्ट्रोफी एस। ये जो ऊपर कोमा लगा हुआ है इसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। मीराज, मीरा अपोस्ट्रोफी एस, ये है मीराज बैग, यानी मीरा का थैला। पोजेशन बता दी कि किसका थैला है? द डॉग बिट द कैट्स टेल, कैट्स टेल यानी कैट की टेल, ठीक है। पोजेशन किसकी है? कैट की है। तो दिस इज़ पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस को लिखने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। ये जो अपोस्ट्रोफी हमने लगाया है, मीराज, मीरा अपोस्ट्रोफी एस, मीराज, इसका मतलब क्या बन गया? मीरा का, ठीक है। लेकिन आपको ये लगाते हुए ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखेंगे आप? कि वन थिंग शुड बी लिविंग एंड द अदर शुड बी नॉन लिविंग। हम अपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग के साथ लगाएंगे, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाएंगे। देखो मीराज बैग, मीरा लिविंग है इसमें, इसलिए हमने इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया। कैट्स टेल, कैट इसमें अपोस्ट्रोफी है, इसलिए हमने कैट इसमें लिविंग है, इसलिए अपोस्ट्रोफी लगाया। हमने यहाँ नहीं लगाया द रूफ ऑफ माई हाउस, रूफ भी नॉन लिविंग है, हाउस भी नॉन लिविंग है, इसलिए हमने माई हाउसेज रूफ नहीं कहा, रूफ ऑफ माई हाउस कहा, ठीक है। इसका मतलब ये जो अपोस्ट्रोफी है ये किसका काम कर रहा है? ऑफ का। क्लियर है?
अब इसको लगाने के कुछ रूल्स होते हैं, इसको लगाने के रूल्स क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरा रूल है विद सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस। जो सिंगुलर नाउन है, मिसेस दास सिंगुलर है, लेकिन इसके पहले ही इसके पीछे एस लगा हुआ है। अगर पहले ही पीछे से एस लगा हुआ है तो हम केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस दोबारा नहीं लगाते। मिसेस दास कार, ठीक है, यानी कार ऑफ मिसेस दास। इसी तरह से यीट्स पोइट्री, यीट इज़ द नेम ऑफ द पोइट, तो यीट्स है इसका नाम, पहले से एस लगा हुआ था इसलिए हमने केवल अपोस्ट्रोफी लगा दिया, दोबारा एस नहीं लगाया, ठीक है। अब द बॉयज़ हॉस्टल, द बॉयज़ देखो, बॉयज़ हॉस्टल यानी लड़कों का हॉस्टल, किसी एक लड़के का हॉस्टल तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये प्लूरल है। और कैसा प्लूरल है? जिसके पीछे एस लगा हुआ है। आपको मालूम है कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस लगा होता है, कुछ प्लूरल होते हैं जिनके पीछे एस नहीं लगा होता, जैसे मैन, ठीक है। तो अगर प्लूरल है उसके पीछे पहले ऐसे एस लगा हुआ है तो आप उसमें केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, दोबारा एस नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा प्लूरल है जिसमें पहले से एस नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। क्लियर है? वी डू नॉट से द पिक्चर्स फ्रेम, गलत है ये। द पिक्चर्स फ्रेम क्यों नहीं कहा हमने? बिकॉज पिक्चर एंड फ्रेम बोथ आर नॉन लिविंग। वी से द फ्रेम ऑफ द पिक्चर। वी डू नॉट से द कार्स व्हील्स बिकॉज कार इज़ नॉन लिविंग। इससे आपको क्लियर हो गया कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं हम उनके पीछे ही अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन टाइम के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं उनके लिए हम अपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। अ डेज जर्नी यानी एक दिन की यात्रा, बिकॉज डे, वीक, मीटर ये क्या है? ये लेंथ बता रहे हैं, स्पेस बता रहे हैं, तो इनके पीछे हम एस लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर वर्थ, WORTH वर्थ वर्ड लगाना होता है उससे पहले हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अ रुपीज़ वर्थ ऑफ पीनट्स, 5 रुपीज़ वर्थ ऑफ शुगर, यानी जहाँ पे वर्थ वर्ड लगाना है उससे पहले अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ फ्रेजेस होती हैं, ये आपके मतलब की बात नहीं है, ये बाद में पढ़ेंगे आप जब बड़े हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू, बेटा रीड इट वंस अगेन। स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉल मी, बट you will have to learn all the rules. Okay, thank you.